question is 3d square plus 27i, 3d square plus 27i whole into, this is y is equal to, this is 3 cos x, 3 cos x plus cos 3x. So this is the question. So here you see, so first you have to find the homogeneous system. So first you have to find what is your YH. तो YH find करोगे, उसके बाद YP find करोगे. तो YH के लिए first you take the homogeneous equation and your homogeneous equation will be 3d square plus 27, okay, 27y, sorry, 27 I whole into y is equal to 0. This is the homogeneous system. And what is your auxiliary equation? Your auxiliary equation will be 3 lambda square plus 27 is equal to 0. This is the auxiliary equation. So from the auxiliary equation you will get lambda. This lambda is equal to how much? This is plus minus 3i. Is it correct? Yes, sir. Okay. So what is your YH? Your YH is equal to, this is cos 3x plus, sorry, a cos 3x plus a b sin 3x. Sin 3x. Is it correct? So now you choose y, yp. So यहाँ पे you see in the non-homogeneous term, two functions are there. One is cos x, another one is cos 3. These two are different, independent functions. Okay, these two are independent. So that is why that is a different function, not a different function. Cos x and cos 3x are a different function. So you have to choose two particular integral. That is your yp is equal to, yp is equal to, this is yp1 plus yp2. Okay, so first you consider yp1. Okay, so you can take choose yp1 is equal to, y1 क्या होगा, तो cos x है, cos x होने से तुम्हारा क्या होगा, दिस इज c1 cos x plus c2 sin x. Is it correct? Yes, sir. Okay, so now you substitute in the differential equation. हाँ, सर थोड़ा फिर से बोल देंगे क्या? तो तुम्हारा यहाँ पे जो नॉन होमोजेनियस टर्म है, नॉन होमोजेनियस टर्म क्या है, 3 cos x and cos 3x. तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है. cos x and cos sin x होने से एक फंक्शन होगा, बट यहाँ पे cos x है and another one is cos 3x है. तो cos x cos 3x, these two are different function. Okay, these two are different function. So you have to choose Yes. two particular integral. That is yp is equal to yp1 plus yp2 and yp1 for cos x and yp2 for cos 3x. सर अगर Okay. सेम होता तो सेम तो नहीं होगा, आइदर cos x sin x होगा, sin x होने से एक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सर एग्जांपल देकर समझा देना. देखो तुम्हारा सपोज तुम्हारा cos x है प्लस sin x होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम एक ले सकते हो. ओके, बट यहाँ पे cos x एंड अनदर कुछ होगा लाइक cos 3x है, तो यहाँ पे दो फंक्शन होगा, इसके लिए एक फंक्शन, इसके लिए एक फंक्शन, बट ये फंक्शन सेम है, cos x plus sin x. अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो सिमिलरली तुम cos 3x होगा तो यहाँ पे sin 3x होगा, तो एक फंक्शन होगा. ओके, ओके चलो. हाँ, तो डिफरेंट होने से दो फंक्शन हो जाएगा. Okay, so here you see, the first you choose for cos x, तो cos x होने से your yp1 is equal to cos x plus sin x plus c1 cos x plus c2 sin x. Got सर it? ये So C1 now और C2 c1 c2 constants, you have to determine, you have to find the value of a c1 c2. Okay, so now you see, okay, okay, एक साथ में कर देता हूँ, इजी होगा. देखो, अच्छा मैं इधर थोड़ा ले जाता हूँ, तो यहाँ पे suppose you choose yp1 is equal to, this is c1 cos x plus c2 sin x.
एक yp1 होगा एंड yp2 क्या चूज करोगे, तो yp2 फॉर cos 3x, cos 3x के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा c1 c2, तो c3 करो, c3 cos 3x प्लस दिस इज c4 sin 3x। ओके, बट यहाँ पे देखो अब डिफरेंट क्या है, तुम्हारा जो वाई एच में जो सोल्यूशन है, जो वाई एच में जो सोल्यूशन है, यहाँ पे देखो वाई एच में जो सोल्यूशन है, तो इसमें सोल्यूशन क्या है, cos 3x एंड sin 3x, तो वो सोल्यूशन रिपीट नहीं होगा। ओके, तुम वाई पे जब चूज करोगे तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई एच, तो वाई एच में ऑलरेडी cos 3x sin 3x सोल्यूशन है, तो यहाँ पे जो yp2 में तुम cos 3x sin 3x नहीं लिख पाओगे, तो इंडिपेंडेंट के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 1x, x मल्टीप्लाई करोगे। इज इट करेक्ट? सर एक बार फिर से। तो जब yp2 चूज करोगे तुम्हारा नॉर्मली क्या होगा, cos 3x था, cos 3x होने से क्या होगा, c3 cos 3x, तो एनी कांस्टेंट इनटू sin 3x, यस और नो? बट यहाँ पे cos 3x sin 3x ऑलरेडी अकर इन द सॉल्यूशन yh, तो इसलिए फॉर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यू हैव टू मल्टीप्लाई 1x। हाँ ओके सर। तो नाउ सर यू एट yp2। सर हाँ सर यहाँ पर एक बार cos 3x एक बार sin 3x लिया जा रहा है, बट yp1 में cos x और sin x लिया जा रहा है, क्यों? समझा नहीं, और एक बार बोलो। जैसे सर yp2 में c3 cos 3x प्लस c4 sin 3x है, yp1 में सर c1 cos x क्यों है, cos 3x क्यों नहीं, वही पूछ रहा हूँ। तुम्हारा दो फंक्शन था ना, cos x एंड cos 3x, इधर देखो दो फंक्शन है ना, cos x एंड cos 3x। यस सर, तो यस सर। एक yp1 के लिए cos x में यूज किया हूँ और yp2 के लिए cos 3x यूज किया हूँ। ओके, तो ओके cos सर। x यूज करूंगा तो cos प्लस sin आएगा, यहाँ पर भी cos प्लस sin आएगा, ठीक है। यस सर, यस। ओके, तो नाउ यू सी, तो यहाँ पे तुम अभी सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे, तो yp1 इतना होगा, तो yp1 डैश फाइंड करोगे, yp1 डबल डैश फाइंड करोगे। ओके, यहाँ पर भी yp2 डैश फाइंड करोगे एंड yp2 डबल डैश फाइंड करोगे। ओके, तो yp1 डैश क्या होगा, यहाँ पे c1 cos x होगा, तो ये माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x, और डबल डैश क्या होगा, माइनस c1 cos x माइनस c2 sin x। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे yp2 डैश हो जाएगा तुम्हारा c3x cos 3x प्लस c4 sin 3x। ओके, यू राइट, ओके, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज माइनस 3c3 sin 3x प्लस 3c4 cos 3x into x plus, okay, first into derivative second, that is c3 cos 3x plus c4 sin 3x into derivative of x is equal to 1. Got it? Then again सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करो तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अगेन क्या होगा, दिस इज माइनस 9 c3 cos 3x अगेन माइनस 9 c4 sin 3x into second function plus minus 3c3 sin 3x plus 3c4 cos 3x। ओके, देन अगेन प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
minus 3c3 sin 3x, okay, plus 3c4 cos 3x. Is it correct? This is the derivative. So now after finding the derivative, now you substitute in the differential equation. So differential equation क्या था? 3d square by 3y double dash plus 27y is equal to 0. So 3y double dash 3y double dash plus 27i, तो 3 double dash क्या होगा? तो 3 into यहाँ पे हो जाएगा minus c1 cos x minus c2 sin x, okay, plus 27 into yp1, that is c1 cos x plus c2 sin x, okay, c2 sin x is equal to तुम्हारा क्या होगा? राइट हैंड साइड में क्या था? 3 cos x into cos 3x, तो यू राइट ओनली 1, 3 cos x लिखो, बिकॉज मैं यहाँ पे cos x के लिए किया हूँ 3 cos x. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? उसको सिंप्लीफाई करोगे तो cos x का कोएफिशिएंट क्या होगा? या क्या कलेक्ट द कोएफिशिएंट, कलेक्ट द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x का कोएफिशिएंट क्या होगा? दिस इज minus 3c1 plus 27c1 is equal to 3, and sin x का कोएफिशिएंट क्या होगा? minus 3c2 plus 27c2 is equal to 0. ओके, तो ये दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो c2 का वैल्यू 0 आएगा. ओके, c2 का वैल्यू 0 आएगा. गॉट इट? एंड c1 का वैल्यू क्या आएगा? तो c1 इज इक्वल टू, दिस इज हाउ मच? दिस इज 27 minus 3, that is 24. ओके, तो 3 by 24, that is 1 by 8. Okay, the c1 is equal to 1 by 8 and c2 is equal to 0. c2 is equal to 0. So now you will get your yp1. Your yp1 is equal to, तो क्या होगा? तुम क्या लिए थे? c1 cos x c2 sin x. तो यहाँ पे हो जाएगा c2 0, तो 1 by 8 cos x. Is it correct? Yes, sir. So same thing you do here. तो यहाँ पे तुम यस The second, व्हाट क्या हुआ? एनी डाउट? sir, C2 plus 27C2. Yes, sir. ठीक है सर, जो माइनस सेकंड इक्वेशन जो है, जो minus 3C2 plus 27C2 है, हाँ, सर उसमें इक्वल टू 0 क्यों है सर? मतलब इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे cos sin x का कोएफिशिएंट कुछ है? यहाँ पे जो मैं 3 cos No, x sir. लिखा हूँ, यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 0 into sin x, तो sin x का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिखा हूँ. इक्वेशन को तुम दोनों साइड इक्वेट करोगे तो क्या होगा? जिसका कोएफिशिएंट होगा उसका लिखोगे, जिसका नहीं है वो 0 होगा. ठीक है? सर एक्चुअली में मेरा डाउट था कि जैसे yp2 में हम लोग x मल्टीप्लाई किए तो मॉडिफिकेशन रूल लग रहा है, और बुक में लिखा है कि x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, डबल रूट रहेगा तो x स्क्वायर, तो ये समझ कैसे आएगा कि x या x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है? देखो, तुम पहले x मल्टीप्लाई करोगे, इज इट करेक्ट? यस x मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखोगे तुम्हारा सॉल्यूशन है अगेन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, मैं यहाँ पे देखो, मैं पहले x मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा फंक्शन अभी क्या हो जाएगा? x into cos 3x, x into sin 3x. yes or no? But x cos 3x, x sin 3x सॉल्यूशन रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है. नहीं, तो बिकॉज तुम्हारा YH में सॉल्यूशन ओनली cos 3x sin 3x है, तो x मल्टीप्लाई करने से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. सो नॉर्मली क्या होता है, सम प्रॉब्लम्स तुम एक x मल्टीप्लाई करोगे, तुम देखोगे सॉल्यूशन अगेन रिपीट हो रहा है, तो तुमको और एक x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, अच्छा, ठीक है.
फिर देखोगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से फिर डिपेंडेंट आ रहा है, तो और एक एक्स मल्टीप्लाई कर, जितना बार डिपेंडेंट आएगा उतना एक्स मल्टीप्लाई करते जाओगे। ओके सर, ओके। ओके, तो वो हाँ, ओके डिपेंड सर। करता है सॉल्यूशन के ऊपर। तो तुम्हारा वाई एस में सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके, तो नाउ यू चूज, यहाँ पे जो YP2 डैश YP2 डबल डैश तुम सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करो, सॉरी प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करो। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, तुम्हारा इक्वेशन क्या है, 3YP2 डबल डैश प्लस 27Y YP2 इज इक्वल टू, क्या था तुम्हारा, था cos 3x। मैं cos x नहीं लिखा बिकॉज मैं यहाँ पे cos 3x के लिए इक्वेट कर रहा है, तो इसलिए cos 3x का लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे ओनली cos 3x लिख रहा हूँ। ओके, 3 cos x को छोड़ दिया, मैं वहां पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो cos 3x होगा, तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से देखो तुम्हारे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट कौन सा फंक्शन है, देखो YP2 डैश YP2 डबल डैश में तुम्हारा 4 टाइप का फंक्शन है। वन इज cos 3x, another one is sin 3x, and another one is x into cos 3x, and another one is x into sin 3x। ये 4 टाइप का फंक्शन है, और कुछ है? तो ये 4 फंक्शन का तुम कोएफिशिएंट फाइंड करो, बस कोएफिशिएंट इक्वेट करो। पहले cos 3x का कोएफिशिएंट इक्वेट करो। cos 3x का कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे तो देखो तुम लिखने से बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इधर से कर रहा हूँ। देखो cos 3x का कोएफिशिएंट कहां पर है, देखो तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिखो cos 3x। देखो यहाँ पर है cos 3x है, मैं cos 3x, this is cos 3x, okay, this is cos 3x and this is, और नहीं, उतना ही है। देखो अभी कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, ये तो नहीं आएगा बिकॉज YP डैश तो तुम्हारा क्वेश्चन में नहीं है, ओनली YP डबल डैश है और YP है। तो तुम्हारा YP डैश नहीं आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं आएगा। तुम्हारा डबल डेरिवेटिव से देखो इधर क्या आएगा, 3 इंटू YP2 डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, 3C4, ओके। देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3C4, ये हो जाएगा तुम्हारा 6C4। तो 3 इंटू 6C4, ओके, इज इक्वल टू तुम्हारा cos 3x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। तो तुम्हारा C4 का वैल्यू क्या होगा, तो C4 का वैल्यू इधर से आ जाएगा 1/18। गॉट इट? तो कम टू द sin 3x। अभी sin 3x का क्या होगा, देखो मैं और एक बार नोट कर रहा हूँ। sin 3x कोएफिशिएंट, दिस इज sin 3x, दिस इज sin 3x, ओके, एंड और नहीं है। sin 3x कोएफिशिएंट देखो क्या होगा, यहाँ पे -3 -6C3 इंटू 3। तो बिकॉज यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 इंटू -6C3, ओके, इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos sin 3x का कोएफिशिएंट नहीं है राइट हैंड साइड में, तो ओनली 0 आएगा। तो यहाँ पे C3 का वैल्यू क्या होगा, C3 का वैल्यू तुम्हारा 0 हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। सर हाँ, सर थोड़ा बोल देंगे 6C4 -6C3 कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो फंक्शन है। तो मैं sin 3x का कोएफिशिएंट कॉल करूंगा, तो sin 3x कहाँ पर है, देखो यहाँ पर sin 3x है और यहाँ पर sin 3x है, और कहाँ पर है, और बाकी जो टर्म है दैट इज x into sin 3x, नॉट sin 3x। और ये जो YP2 डैश है, YP2 डैश तो हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमारा क्वेश्चन में YP2 Yes, टर्म yes, नहीं है। ओके, और YP2 में x मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट -3C3 क्या होगा, -6C3 होगा। -6 यस सर, यस सर। So again you choose, you collect the coefficient x into cos 3x। तो x into cos 3x और एक बार मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो ये वाला आएगा x cos 3x और ऊपर में आएगा ये वाला आएगा x cos 3x। तो ये दोनों का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे ऊपर में है C3 और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 into 3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 3YP2 डैश, तो -27।
तो -27c3 प्लस c3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -27c3, ओके, 27c3 प्लस c3 इज इक्वल टू 0, ओके, एंड c3 इज इक्वल टू 0, तो वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग हियर, ओके। तो यहाँ पे तुम ऐसे यूज करोगे तो c3 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, c3 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, बिकॉज ऊपर में ऑलरेडी c3 0 आ चुका है। गॉट माय पॉइंट? अगेन अच्छा में, हाँ, देन नेक्स्ट इज x sin 3x। तो x sin 3x कौन सा होगा? ये वाला देखो, x sin 3x, ये एक टर्म आएगा और ये एक टर्म आएगा। यस सर C3 और C4 तो आ चुका है ना, फिर सॉल्व करने का क्या फायदा? ना, कोई जरूरत नहीं है, तो तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे और एक चीज याद रखो, टेक्निक क्या है, जब तुम देखोगे x मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन में जब x मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हाँ, जब x मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा yp और वो जो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल में x मल्टीप्लाई करोगे, तुम देखोगे तो x मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगा उसका कोएफिशिएंट कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम कलेक्ट करोगे तो बोथ साइड सेम आएगा, ओके, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ओके। तो इसमें कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड? जैसे मेरे यहाँ पे 4 Yes, टर्म sir. आया, ये cos 3x sin 3x x cos 3x x sin 3x, तो ये दोनों का कोई करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों का कोएफिशिएंट कलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। सर वो जो 27yp2 है उसीलिए नहीं कर रहे हैं ना, मतलब वो 0 आएगा। ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तुम देखो sin को x sin 3x का कलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो बोथ साइड 0 आएगा, तुम कुछ इक्वेशन फाइंड नहीं कर पाओगे। नहीं सर, जो आप ऊपर लिखे ना 3y"p2 + 27yp2, वो उसमें भी 0 आएगा ना, मतलब 27yp2 में। अच्छा हाँ, सर, तुम ठीक। इधर पुट करोगे तो 0 आएगा। सर यहाँ पे 27 होगा, सर यहाँ पे 27 का मल्टीप्लाई होगा, 27 टू c3, देखो बोथ साइड तुम्हारा 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे करोगे, नीचे भी सब बोथ साइड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके, बोथ साइड 0 आ जाएगा। तो बोथ साइड 0 आने से तुमको इक्वेशन क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। यस सर, नो? अंडरस्टूड? यस सर। तो तुम एग्जाम में चाहो कर सकते हो, तो ये वाला कोएफिशिएंट कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली। सर लेकिन जो ऊपर वाला है cos हाँ, cos 3x का रहेगा, 3x, cos 3x और sin 3x उसमें का। हाँ सर, जो ऊपर है ना, cos 3x और sin 3x का कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। एनी अदर डाउट? सर 9th में भी ऐसे ही होगा ना, सेम प्रोसीजर? यस यस, सेम प्रोसीजर। तुम्हारा मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा बोल दूंगा। देखो तुम्हारे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? yp2 हो जाएगा तुम्हारा c4 एंड c3 तो 0 हो जाएगा, ओनली c4 रहेगा। तो c4 का वैल्यू क्या है? दैट इज c4x sin 3x। c3 0 हो जाएगा, तो ओनली c4x sin 3x। तो सर उसमें तो 27yp2 मल्टीप्लाई कहाँ पे? तुम्हारा 27 yp2, इसमें साइन x कुछ टर्म नहीं था ना, इसमें देखो yp2 में तुम्हारा sin 3x और cos 3x का कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, बिकॉज जो भी है x into cos 3x x into sin 3x, ओनली cos 3x sin 3x का कोएफिशिएंट है। अंडरस्टूड और नॉट? नो सर। नहीं सर, थोड़ा फिर से बोल दें क्या? नेटवर्क इशू हो रहा है, कट जा रहा है बीच बीच में। देखो तुम्हारा मैं जो 4 फंक्शन लिखा हूँ, cos 3x sin 3x x cos 3x x sin 3x, तुम देखो कहाँ पे टर्म है तुम्हारा cos 3x sin 3x, क्या ओनली yp2 डबल डैश में है? yp2 डैश में है क्या? सॉरी, yp2 में है क्या? yp2 में है, इसमें है, देखो इसमें है। cos 3x sin 3x नहीं है, यहाँ पे x into cos 3x x into sin 3x है, ओके। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, यस सर। तो तुम्हारा yp2 हो जाएगा 1/18 x इंटू क्या होगा? sin 3x होगा, ओके, x इंटू sin 3x, ये तुम्हारा yp2 हो जाएगा। तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा?
तुम्हारा सॉल्यूशन YP हो जाएगा तुम्हारा YP1 प्लस YP2 and which is equal to this is 1/8 cos x plus 1/18 x into sin 3x. This is your YP. तो तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन y is equal to YH plus YP. And YH क्या था? This is a into cos x plus cos 3x plus b into sin 3x, okay, then plus 1/18 into cos x plus 1/8 and 1/18 into x sin 3x. Okay, so this is your general solution. तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? देखो तुम्हारा एक फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो एक e⁴ 4x है और एक e⁴x है, तो दो फंक्शन है। तो ये भी एक फंक्शन, इसको तुम YP1 चूज करोगे, इसको तुम YP2 चूज करोगे, ठीक है। और तुम्हारा YH में क्या था? तुम्हारा d² माइनस 16i इज इक्वल टू 0 है, तो 16i 0 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो एक आएगा e⁴x और एक आएगा e⁻ -4x। ओके, दिस इज C1 प्लस C2, ये तुम्हारा हो जाएगा YH। तो तुम देखो, तो जब YP1 चूज करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सपोज e⁴x, तो यहाँ पे e⁴x रिपीट हो रहा है, तो और एक x मल्टीप्लाई करोगे, तो C3 इंटू x इंटू e⁴x। एंड जब YP2 चूज करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ओनली C4 e⁴x रहेगा, बिकॉज तुम्हारा e⁴x है। अंडरस्टूड? समझ में आया? सर यस सर, आगे समझ हाँ, आया। तो उस हिसाब से करोगे। और कुछ डाउट है बोलो। सर उसी का और 10 नहीं। क्वेश्चन में RX x sin x दिया है, तो उसका क्या फॉर्म YP2 लेंगे? कहाँ पे दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में x sin x दिया है, उसमें तो सम रूल भी नहीं लगा सकते, तो क्यों उसमें नहीं लगा सकते? x sin x का तुम पहले बोलो, x sin x का क्या होगा? x sin x होगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा a1x प्लस b1 इंटू cos x प्लस a2x प्लस b2 इंटू sin x, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? YP। अच्छा ठीक है। ओके, बिकॉज x मल्टीप्लाई हुआ है, तो a1 तुम्हारा जो कांस्टेंट आएगा दैट इज a1x प्लस b1, ये वाला आ जाएगा a2x प्लस b2, ठीक है। ये वाला याद रखो, ये वाला यूज करोगे। ओके, थैंक यू। ओके, तो वी कम टू द सिस्टम ऑफ सॉरी रैंक, जो बेसिस डायमेंशन को, चलो वेक्टर स्पेस बेसिस डायमेंशन, तो वहां पे देखो हम प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जो वेक्टर स्पेस का। देखो कैसे वेक्टर स्पेस और डायमेंशन और बेसिस फाइंड करोगे। ओके, लेट अस सी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी जो आपने क्वेश्चन करवाया सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक बार अलग क्वेश्चन से फिर से समझा दीजिए ना प्लीज। समझा नहीं? तुम समझ में नहीं है? ये तो बहुत पुराना क्लास है, चैप्टर 2 का, वो हाँ डाउट सर। था, पूछे थे। हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हुआ बोलो। सर वही क्वेश्चन ही मेरे को समझ में नहीं आया, कैसे सॉल्व किया आपने। ये अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट है। ओके, तो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट जो था उसी का प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो 2.7 का देखो, तुम पहले नोट पढ़ो, नोट नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। ओके, पहले तुम्हारा जो भी मैनुअल भेजा हूँ उसको पहले पढ़ो एक बार, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आएगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में फिर पूछोगे, मैं और एक बार सर अभी क्विज इसी चैप्टर से हुआ था, मैंने पढ़ा इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर ये वाला तुम समझ में नहीं आया? नहीं सर। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट
देखो मेथड फॉर अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में तुम्हारा क्या होगा, तुम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुम क्या करोगे, सपोज तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया है। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, तुम्हारे जो राइट हैंड साइड फंक्शन है वो नॉन जीरो होगा, दैट इज नॉन होमोजेनियस। ओके, तो होमोजेनियस के लिए तुम्हारा सॉल्यूशन का फॉर्म क्या है, दिस y इज इक्वल टू ys प्लस yp। ओके, एंड व्हाट इज ys, दिस ys इज द solution, sorry, ys is the general solution of a homogeneous DOD, homogeneous differential equation। and यहाँ पे homogeneous differential equation क्या है, this one is the homogeneous differential equation। दैट मींस तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, राइट हैंड साइड में पहले जीरो पुट करोगे, दैट इज द होमोजेनियस इक्वेशन। पहले होमोजेनियस इक्वेशन का तुम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करोगे, फार्मूला गिवन है तो तुम सॉल्यूशन फाइंड करोगे ys। एंड तुम्हारा जो नॉन होमोजेनियस टर्म रह गया उसके लिए तुम एक जो सॉल्यूशन फाइंड करोगे, दैट इज कॉल्ड yp, दैट इज कॉल्ड yp। and this yp is called particular integral, and this particular integral is what, this is the solution of, okay, solution of a non homogeneous term, solution of non homogeneous term। तुम्हारा नॉन होमोजेनियस टर्म जैसा है उसी हिसाब से तुमको yp फाइंड करना पड़ेगा। तो रूल कहता है, if your non homogeneous term, okay, if cos e to the power exponential function होगा तो तुम चूज करोगे yp, चूज करोगे सम कांस्टेंट इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था, देखो जैसे e टू द पावर x होगा तुम्हारा नॉन होमोजेनियस टर्म, ओके, तो तुम yp चूज करोगे सम कांस्टेंट इनटू e टू द पावर x। आंसर अगर x टू द पावर n होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो तुम yp चूज करोगे द जनरल फॉर्म ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल। ये x टू द पावर n मींस nth डिग्री है, तो yp चूज करोगे तो nth डिग्री पॉलिनोमियल, दैट इज k0 प्लस k1x देन अप टू दिस इज kn x टू द पावर n। और जनरल फॉर्म ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल चूज करोगे। एंड यहाँ पे cos x होगा और cos ax और sin ax और cos प्लस sin, cos ax प्लस sin ax जो भी होगा, ओके, ये तीनों के लिए एक ही फंक्शन चूज करोगे। दिस yp इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k1 c1 जो भी लिखो, k1 into cos x cos ax प्लस k2 into sin ax। ओके, तो दिस इज द थिंग, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो मैं एक टेबल बनाया था, तुम नोट देखो वहां पे एक टेबल बनाया, बुक में भी एक टेबल है, तो देख के उसी हिसाब से yp चूज करोगे। और थिंग है समटाइम्स व्हाट हैपन, तुम देखोगे yh और yp, ये जो yh और yp, yh और yp ये दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ओके, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तुम देखोगे जब तुम yp चूज करोगे वो जो सॉल्यूशन yh में रिपीट करेगा तो एक x मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मैं अभी किया था क्वेश्चन में, अभी जो प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, yh में कुछ सॉल्यूशन रिपीट होगा तो yp जब चूज करोगे एक x मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। ओके, तुम पढ़ो और एक बार पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक बार पढ़ो, ओके, कुछ डाउट होगा तो मुझे बोलोगे, आई विल अगेन मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके सर। नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालो, ओके, तुम्हारे लिए मैं और एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है? कोई डाउट होगा तो कुछ टाइम निकालो, फाइंड करो, ठीक है? कोई सैटरडे या और भी कुछ डेट में शाम को कुछ टाइम निकालो, 15-20 मिनट होगा तो मैं उसको और एक बार तुमको समझा दूंगा, ठीक है सर। हाँ। ओके, तो तुम्हारा वेक्टर स्पेस का कुछ क्वेश्चन करो, देखो यहाँ देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 तुम्हारा बुक का एक्सरसाइज 7.4 में देखो रो स्पेस कॉलम स्पेस, ओके, क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, देखो
एक मैट्रिक्स गिवन है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में क्या लिखा है, तुम क्या क्या फाइंड करोगे, रैंक फाइंड करोगे, रो स्पेस फाइंड करोगे, और क्या है, कॉलम स्पेस फाइंड करोगे। रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस, ये तीनों फाइंड करोगे। ओके, फाइंड द रैंक, फाइंड ए बेसिस फॉर द रो स्पेस, फाइंड ए बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस। ओके, तो रो स्पेस और कॉलम स्पेस का बेसिस फाइंड करोगे। ओके, तो बेसिस ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। ओके, बेसिस ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस फाइंड करोगे और रैंक फाइंड करोगे। किसका फाइंड करोगे, एक मैट्रिक्स गिवन होगा। सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सपोज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, सपोज 4 -6 0, ओके, -6 0 1 और एक है 0 1 4 0 1 4। सपोज ए मैट्रिक्स इज गिवन, ए मैट्रिक्स इज गिवन। तो रैंक क्या है, तो यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू अप्लाई द रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन करोगे, तो पहले तुम रो ऑपरेशन करो। ओके, बिफोर, अच्छा पहले रो ऑपरेशन करो। रो ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, देखो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट रो अनचेंज रहेगा, 4 -6 0 रहेगा। सेकेंड रो में क्या करोगे, ये दोनों को 0 पुट करोगे, -6 को 0, इसको तुम 0 पुट करोगे, तो तुम्हारा क्या ऑपरेशन होगा, दिस रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय, दिस इज 2 रो 2 प्लस 3r1। इज इट करेक्ट? 6 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 4 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, दोनों को 8 कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो बाकी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, एंड थर्ड रो तो ऑलरेडी 0 है और कुछ लिखने का जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी 0, इट इज ऑलरेडी 0। ओके, तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में तुम क्या करोगे, इसको 0 पुट करोगे। तो इसको 0 पुट करोगे तो बाकी दोनों रो को सेम रखो, 4 -6 0 0 -18 2, एंड इसको 0 पुट करोगे तो तुम्हारा ऑपरेशन क्या होगा, दिस r3 इज रिप्लेस्ड बाय 18 into r3 प्लस r2। ओके, 18 into r3 प्लस 1 में 18 मल्टीप्लाई करो, वो दोनों का ऐड कर दो रो 2 के साथ, तो 0, ये वाला 0 आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 आएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 18 into 4 प्लस 2, तो 18 into 4 क्या होगा, 72 प्लस 2 74। Is it correct? Is it correct? हेलो, यस सर। तो तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारा ये जो मैट्रिक्स में तुम्हारा कितना नॉन जीरो रो आया है। रैंक का मतलब क्या है, तुम्हारा रैंक का डेफिनेशन क्या है, योर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मींस यहाँ पे नॉन जीरो क्या है, 3। तो ऑल आर नॉन जीरो, पूरा रो क्या 0 आया, अभी तो कोई जो रो 0 नहीं आया। 0 रो मतलब पूरा रो 0 आएगा, तो यहाँ पे नो रो आर देयर। ओके, ऑल आर नॉन जीरो रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 3, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो और एक क्वेश्चन है तुम्हारा रो स्पेस, बेसिस ऑफ रो स्पेस एंड बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस। तो बेसिस ऑफ रो स्पेस क्या होगा, देखो बेसिस ऑफ रो स्पेस, तो बेसिस ऑफ रो स्पेस क्या होगा, तुम्हारा रो स्पेस जो होगा, पहले फाइंड करो व्हाट इज रो स्पेस। अच्छा, तुम जो रो स्पेस पहले फाइंड करो सर। सर हाँ, सर नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स होगा। अब number of non-zero columns, because number of non-zero row is same as the number of non-zero columns. Okay, always same आएगा।
फिर अगर देखो, वहां पे जो मैट्रिक्स लिखा है ऊपर उसमें 4 की जगह अगर 0 होता है तो क्या होता है? किसके जगह? तो ये ऊपर ये वाला जो मैट्रिक्स है नीचे वाला। अच्छा, 4 के जगह 0। यस सर। हाँ, 4 के जगह 0 होगा तो तुम्हारा कॉलम रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक रो भी 0 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ऑटोमेटिकली एक रो भी 0 आ जाएगा, बिकॉज रूल कहता है तुम्हारा रो ऑपरेशन करो या कॉलम ऑपरेशन करो। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑपरेशन करोगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कॉलम ऑपरेशन करोगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम, बोथ आर सेम। ओके, देखो और कर रहा हूं, देखो रो स्पेस पहले फाइंड करो व्हाट इज योर रो स्पेस। ओके, मतलब अगर रो का ऑपरेशन करेंगे तो नंबर ऑफ रोज देखेंगे। यस, कॉलम अच्छा ऑपरेशन अच्छा। करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम आएगा। अच्छा, रो यस सर, स्पेस गॉट इट। क्या होगा? व्हाट इज रो स्पेस? तो रो स्पेस इज व्हाट? द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स, linear combination of a row vectors. So this is row space means what? The linear combination of row vectors. ओके, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स। तो तुम्हारा यहाँ पे जो रो वेक्टर है, तो पहले जो है देखो तुम्हारा क्वेश्चन में जो रो वेक्टर है उसका लिनियर कॉम्बिनेशन, सपोज यू कैन से दिस इज अल्फा 1 into which is equal to रो स्पेस इज इक्वल टू दिस इज अल्फा 1 into, okay, 4 minus 60, 4 minus 60, this is the first row, plus alpha 2 into second row, your second row is minus 601, okay, then plus your alpha 3 into last row, that is 0 comma 1 comma 4. Okay, so this is your what? This is your row space, the linear combination of a row vectors. Okay, and if you find what is the basis, तो बेसिस फाइंड करोगे तो बेसिस ऑफ रो स्पेस, तो बेसिस ऑफ रो स्पेस मींस तुम जो मैट्रिक्स है उसको तुम क्या करोगे? रो ऑपरेशन करोगे। रो ऑपरेशन करने से जो बेसिस आएगा, द बेसिस इज इक्वल टू तुम्हारा रो ऑपरेशन, ये वाला रो ऑपरेशन हो गया, ये जो मैट्रिक्स तुम्हारा आया है ये रो ऑपरेशन करके आया है, तो ए वाला मैट्रिक्स लिखो 4 minus 60। सर वो जो रो स्पेस में बताए अल्फा 2 के बाद जो -6, 0, 1 है वो थोड़ा बता सकते हैं क्या फिर से? ये वाला वेक्टर में लिखा हूं, ये रो वेक्टर, जो 3 रो वेक्टर इसी को मैं लिखा हूं जो क्वेश्चन में जो गिवन है। अच्छा सर, वो जो पहला वाला का मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स का। हाँ, ओरिजिनल मैट्रिक्स का। ओके, तो रो स्पेस में द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली बेसिस क्या है? तुम रो ऑपरेशन करोगे, रो ऑपरेशन करने के बाद जितना नॉन जीरो रो वेक्टर आएगा वो हो जाएगा बेसिस। तुम्हारा नॉन जीरो वेक्टर तो 3 आया है, यू हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, 4 minus 60, 0 minus 18 2, ओके, 0 minus 18 2, और एक आया है 0 0 74, 0 0 74। ये तुम्हारा क्या रो ऑपरेशन करने के बाद आया है। आफ्टर द रो ऑपरेशन यू विल गेट दिस वेक्टर्स। ओके, so this is the basis of a row space. तो व्हाट इज द रो रैंक? रो रैंक मतलब तुम्हारा डायमेंशन ऑफ अ बेसिस ऑफ रो स्पेस। ओके, sorry, not basis, sorry, dimension of a row space, only dimension of a row space, dimension of a row space। तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस क्या आएगा? 3 आएगा। तो सिमिलरली देखो बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस फाइंड करो, कॉलम स्पेस। तो कॉलम स्पेस क्या होगा? दिस इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस सर जो रैंक सॉरी रो रैंक है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस वो 3 है उसीलिए 3 है ना, मतलब जैसे 4 यस 6। यस यस, 3 वेक्टर है इसलिए 3 है। लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम वेक्टर्स, ओके, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम वेक्टर्स। तो तुम्हारा कॉलम स्पेस क्या हो जाएगा? दिस इज अल्फा 1 into फर्स्ट कॉलम। तुम्हारा फर्स्ट कॉलम क्या है? 4 minus 60,
4 माइनस 6 0 ट्रांसपोज मैं रो करके उसका और ट्रांसपोज लिख रहा हूं, दैट इज कॉलम. ओके, देन माइनस 6 0 1 प्लस माइनस 6 0 1 प्लस alpha 3 into third column, that is 0 1 4 transpose. Got it? This is the column space, the linear combination of a column vectors. देखो मैं column vector लिया हूं, बट लिखा हूं रो हिसाब से, तो उसी ट्रांसपोज लिख दिया. ठीक है, दिस इज द linear combination of a column vector. And when you find the basis of a column space, the basis of a column space, the basis of a column space कैसे फाइंड करोगे? तो तुम्हारा जो मैट्रिक्स है 4 माइनस 6 0 माइनस 6 0 1 0 1 4, तो दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज. मैं ए ट्रांसपोज का रो ऑपरेशन करूंगा. ओके, ए मैट्रिक्स का कॉलम ऑपरेशन, दैट मींस ए ट्रांसपोज का रो ऑपरेशन. तो बेटर होगा तुम एक ऑपरेशन, क्योंकि रो ऑपरेशन सबसे इजी है. कॉलम ऑपरेशन करोगे थोड़ा गलती हो जाएगी, बिकॉज़ तुम रो ऑपरेशन में एक्वेंटेड हो गए हो. जब कॉलम ऑपरेशन करोगे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा. ओके, तुम कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो तुम ए ट्रांसपोज करके उसका रो ऑपरेशन करोगे. ओके, तो उसका रो ऑपरेशन करोगे, आई होप कि सेम वेक्टर आएगा. ओके, सेम वेक्टर आएगा. ओके, दैट इज 4 माइनस 6 0 आएगा, 0 माइनस 18 2 आएगा, और यहाँ पे 0 0 74 आएगा, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज सेम मैट्रिक्स आएगा. इज इट करेक्ट? देखो सेम मैट्रिक्स था ना, देखो. ओके, सेम मैट्रिक्स है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसीलिए ए ट्रांसपोज करने भी सेम मैट्रिक्स आएगा, तो रो ऑपरेशन करने भी सेम आएगा. ओके, तो तुम्हारा जो बेसिस आएगा, तो बेसिस क्या होगा? बेसिस ऑफ अ कॉलम स्पेस. तो बेसिस ऑफ अ कॉलम स्पेस यू जस्ट राइट दिस इज 4 माइनस 6 0 ट्रांसपोज कॉमा 0 minus 18 2 transpose, then another one is 0 0 74 transpose. So this is the basis of a column space. So what is the column rank? The column rank is equal to, this is the dimension of column space, and which is equal to also 3. Understood? ओके, टाइम तो हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में देखोगे. और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. ठीक है, गॉट इट? यस सर. ओके, ठीक है. तो ठीक है, यू राइट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स and email it. Excuse me, sir.